So as I told you, see, like data structure is a really important subject for any real-time development. You learn any programming like a Java, you learn Python, huh? ठीक है? So as I told you, like see here. Okay, so the content of the data structures are in the data structures you have first thing is a dynamic memory allocation. आता हे काही लोकांचं झालंय तरी पण मी ते रिपीट करेल नंतर. Okay, just remember this. Then static memory allocation. Okay, static memory allocation. There is a dynamic memory allocation and static memory allocation. Then before this, what is the data structure? What is the data structures? What is the data structures? Different type of data structures. Data structures. Different type of data structures. Okay. Different type of data structures. Okay. Okay, listen. What is data structure? Different type of data structures. Dynamic memory allocation, static memory allocations. Okay, so then how to allocate dynamic memory using a different concepts in C, C++ or in Java. What is static memory allocation, which has like a the array, one dimension array. There is a 2D array. Okay, I hope you remember this concept. Okay, I hope you remember this concept from the C, C++ background. Then we have a topic like searching. Okay, searching. Then we have a topic which has here linear search. Then we have a binary search, linear search, binary search. Then we have a sorting topic. Here we have like a bubble sort. Okay, selection sort, insertion sort. Okay, and many other sorting techniques are there. Okay, then after this there is a concept of the linked list, which is called as dynamic memory allocation. Circular linked list. Then we have a doubly linked list. Then we have a stack. Okay, queue. Okay, then we have a priority queue. Okay, priority queue. Then we have a tree. Then BST, binary search tree. Okay, then there is a concept of the graph. So these are the important topics of the data structures. This is just the name of the chapter. Okay, so but there are so many things are there in every chapter. Clear? So basically these are the standard contents of the data structures. So सबसे पहले why we need a data structures? Okay, and why in every interview there is an important to the data structures. See, if you just Google it out, like you can say that importance of data structures in interview. Look at this. It's the first question here. Point is here. Sometimes interviewer question explicitly mention on the data structures. For example, given a binary tree. Other time it's a implicit, like we want to track the number of books associated with each author. Look at this. So because this will come to the main part of your logical thinking. So main part of the logical thinking, learning a data structure is essential, even if you are just trying to get a better at your current job. Look at this. The data structure, this is the important role of the data structure is, even you are a professional IT engineer, you have a good experience, but still it's suggested that you should know the good understanding about the data structures. Okay, top data structures you should know for your next coding. Look at this. Top data structures you should know in the next coding. So what are the data structures they have mentioned here? Let me just check here. So why do we need data structures? Which are used to store the data in organized form, and since the data is the most crucial entity in the computer science, the true worth of the data structure is clear. Listen, the true
worth of the data structure is clear, because the important part of the IT industry is the data. Nowadays you can say that data analysis, data science, big data, database, everywhere the common word is the data. Am I right? Yes or no? You can go for anything like a database, big data, data science, data analysis. So everywhere there is a common word called as the data. There is a common word called as the data. ठीक है, तो ये जो डेटा होता है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवेयर द डेटा इज इंपॉर्टेंट. तो यू कैन जस्ट चेक, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए दिखा रहा हूं मैं. लुक एट दिस. द कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर्स आर array, then stack, queue, linked list, tree, graph, so hash table, ये आएगा यहाँ पे. So these are the common data structures. These are the very important data structures. कोई भी इंटरव्यू में जाओ, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो हम देखेंगे ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्या काम करता है वगैरह वगैरह, राइट. ठीक है, so this is just for your information. What is important of the data structures? See, data structure is a process through which the data is stored and arranged in the disk space of the computer or memory storage in a way that the data can easily use and manipulate in the future. Remember this line: data can be easily used. Data can be easily used and manipulate in the future. Okay, it is an effective way of performing the various operations related to the data management. डेटा मैनेजमेंट. ओके, सो तुम कोई भी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो नो व्हाई दे हैव गिवन द इंपॉर्टेंट टू द डेटा स्ट्रक्चर्स. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि अगर एक एग्जांपल लो, तुम्हारे घर के अंदर तुमने कुछ चीजों को रखा है, बुक्स है तुम्हारे, सपोज अगर तुम्हारे पास बहुत सारे बुक है, लाइब्रेरी है कॉलेज का लाइब्रेरी है, सपोज दिस इज अ कॉलेज लाइब्रेरी. अब इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. ओके, यहाँ पे कुछ डेटा रहेगा 4, 5, 6. अभी इन लोगों ने कैसे रखा है डेटा को? यहाँ पे फर्स्ट ईयर का डेटा, यहाँ पे सेकेंड ईयर का डेटा, यहाँ पे थर्ड ईयर का डेटा, यहाँ पे लास्ट ईयर का डेटा. दिस इज लाइक एमसीए का डेटा, एमई का डेटा, राइट. ऐसे कुछ डेटा होगा. ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो तुम इस सेक्शन में जाके डेटा को सर्च करोगे, यस और नो? If you are in a second year, then you will directly go to this area and you can search your data, yes or no? Tell me. तो अभी इमेजिन करो, ये अगर सारा डेटा अगर सॉर्ट इस तरीके से नहीं लिखा होता, एंड ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन अ वन फाइल डायरेक्टली, ऐसे अगर पूरा डेटा ऐसे लिख दिया यहाँ पे विदाउट अ सॉर्टिंग, सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस अप्रोच एंड दिस अप्रोच? क्या फर्क पड़ेगा बोलो, इस वाले अप्रोच में और इस वाले अप्रोच में? सारा फर्स्ट ईयर भी यहीं पे है, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, एमसीए भी, लास्ट ईयर भी, सब डेटा यहीं पे है. बोलो व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द अप्रोच? टेल मी. फर्स्ट में इजीली एक्सेसिबल. ओके, it is easier to find the required data in a sorted one. Okay, unorganized data in the second one. तो सबसे important क्या है? It is easier to find the required data in a sorted one. इसका मतलब क्या हुआ? Okay, यहाँ पे first में easily accessible है, तो you imagine that कि डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेटा सर्च करना पड़ेगा, yes or no? टेल मी, अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेटा सर्च करना पड़ेगा, यस और नो? टेल मी. तो कौन से अप्रोच से तुम लोग सर्च करोगे? तो अगर मुझे बताओ, अगर यू टेल मी वन थिंग कि एक वन पर्सन हैज द स्टोर द डेटा इन द प्रॉपर फॉर्मेट एंड सेकेंड पर्सन हैज स्टोर द डेटा इन लाइक दिस वे, ऐसे सब कुछ एक साथ लिख दिया. एक पर्सन ने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, दूसरे पर्सन ने डेटा को ऐसे मर्ज करके दिया है सब जगह पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे टाइम कम लगेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुनिया में टाइम, नॉट फॉर डेटा स्ट्रक्चर ओनली. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पूरी दुनिया में? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? बरोबर की नहीं?
सगळ्यात महत्वाचं काय गोष्ट आहे? टाइम. ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, टाइम मतलब इफिशियंसी. टाइम मतलब इफिशियंसी, जितने कम से कम टाइम में तुम्हारा काम होता है, ओके, उतना ही यू विल गेट द मोर एडवांटेज. तुम लोग भी देखो, तुम अगर कंपेयर करो, तुम्हारे पास दो पेन है, तो उसमें से जो पेन तुम्हें लग रहा है कि हाँ इस पेन से हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं और फास्ट लिख सकते हैं, तो यू विल सेलेक्ट दैट पेन. सिमिलरली, अगर तुम्हारे पास दो मोबाइल फोन है, तो तुम देखते हो अरे कौन सा मोबाइल फोन इफिशिएंट है, कौन सा मोबाइल फोन फास्ट है, तो वो यूज करेंगे. अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, तो एवरीवेयर द इम्पोर्टेंट पार्ट इज everywhere the important part is time. Clear? Everywhere the important part is a time. ठीक है? So everywhere the important part is what is that? It's a time. Remember this. ठीक है? याद रखो. तो म्हणजे तुम्ही काही पण करा, कुठलं पण ऍप्लिकेशन बनवा, पण प्रत्येक ऍप्लिकेशन मध्ये इम्पॉर्टन्स आर गिवन टू द टाइम. इम्पॉर्टन्स आर गिवन टू दी टाइम. एक सेकेंड. हाँ, तो देखो एज आई टोल्ड यू हियर कि अगर तुम्हारे पास डेटा प्रॉपरली फॉर्मेट में है तो ही तुम उसको इजीली सर्च कर पाओगे. ठीक है, अगर तुम इसका एग्जांपल देखोगे, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द डिफरंट डेटा स्ट्रक्चर्स. म्हणजे आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये जे ऑपरेटिंग सिस्टम आहे ना, ते पण कसे डेव्हलप झालंय? बाय युजिंग अ डिफरंट डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दिस लास्ट टाइम ऑल्सो कि अगर देखो तुम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हो ऐसे ABCD. ओके, तो अगर तुमने यहाँ पे बोला कि सपोज इफ आई डिलीट द वैल्यू हियर, टेक एग्जाम्पल, इफ आई डिलीट द वैल्यू D. अगर D को डिलीट करोगे तो ये D सबसे नीचे आएगा यहाँ पे. फिर अगर तुमने डिलीट कर दिया C को, तो ये C जो रहेगा ये आएगा यहाँ पे. ठीक है, अगर तुमने डिलीट कर दिया बी को, तो ये बी आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे ही हियर. ओके, जब इसको अंडू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? बी बाहर आएगा ये. फिर उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये होता है स्टैक. ये क्या होता है? स्टैक. स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट इन किया हम लोगों ने, वो पहले आउट होगा. तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज हो रहा है. So this data structure is already used in operating system. This data structure is already used in a operating system. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. इसके अलावा अगर तुम देखोगे कि तुम्हारे मोबाइल के अंदर कुछ एसएमएस आते हैं, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो जो मैसेज पहले आएगा वही क्यू में पहले रहता है. या अगर कॉलेज में प्रिंट आउट निकल रहे हो तुम लोग, सो प्रिंट आउट का जो भी सीक्वेंस रहेगा, तो सपोज बाई चांस ये प्रिंट पहले था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और बाई मिस्टेक तुम्हारा प्रिंटर बंद है, तो जैसे ही प्रिंटर ऑन करोगे तो सबसे पहले ये प्रिंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा. ओके, सिमिलरली इफ यू गो टू दी लाइक होटल वगैरह, या वहां पे तुम्हें टोकन मिलता है बैंक में, तो जिसका टोकन नंबर पहले रहेगा उसका रिक्वेस्ट पहले सॉल्व होगा. तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्यू. क्या बोलते हैं इसको? क्यू. QUE. दैट इज द स्पेलिंग हियर, क्यू. ओके, इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्यू. सो हियर यू कैन से QUE क्यू. तो क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो हम लोग ये सारे डेटा स्ट्रक्चर बाद में देखने वाले हैं, डोंट वरी. हम लोग ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को बाद में हम लोग इसको देखने वाले हैं. रिमेंबर दिस. ओके. Okay, so we are going to learn all these data structures in detail. Right now, I'm just giving you the introduction. Stack का मतलब होता है, what is the meaning of stack here? Last in, first out. What is the meaning of queue here? First in, first out. First in, first out. तो इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि हम लोग बैंक में जाते तो वहां पे हमें टोकन नंबर मिलता है, टोकन नंबर 1 2 3 4. तो ये सारा इससे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर. ओके, सो एक एक लक्षात घ्या तुम्ही इथे
की जो तुम्ही बघा ना, बँकेतलं ऍप्लिकेशन सांगितलं तुम्हाला मी, ऑपरेटिंग सिस्टीमचं ऍप्लिकेशन सांगितलं. ठीक आहे, आपल्या मशीनचं जे माय कॉम्प्युटर आहे, यू कॅन चेक दिस माय कॉम्प्युटर. यू हैव अ माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. तो जैसे कि फैमिली ट्री होता है ना, यहाँ पे अगर ग्रैंड फादर होंगे, राइट? सो लाइक आफ्टर दैट देर आर लाइक टू सन, लाइक टू चिल्ड्रंस आर देयर. ओके, सो देन इनके भी और भी यहाँ पे नीचे चिल्ड्रंस रहेंगे, राइट? तो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज द ट्री स्ट्रक्चर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री स्ट्रक्चर. So somewhere we need to store the data in this type of format. Somewhere we need to store the data in this format. तो तब हम इसको बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स. तो मतलब जिस सिचुएशन में तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं बैंक में जा रहा हूं, बैंक में अगर मैंने क्यू के जगह अगर स्टैक इंप्लीमेंट कर दिया, आउटपुट आएगा? ऐसे नहीं कि नहीं आएगा. ओनली द पॉइंट डिफरेंस इज दैट कि जो कस्टमर सबसे पहले बैंक में जाएगा वो सबसे आखिरी में बाहर आएगा. यस और नो? प्लीज टेल मी. आर यू एबल टू अंडरस्टँड दिस? जर तुम्ही इथे स्टॅक यूज केलं तर जो सगळ्यात पहिले सकाळी बँकेत गेला होता तो सगळ्यात शेवटी बाहेर येणार. येस ऑर नो? सो इथे हा डेटा स्ट्रक्चर रॉंग आहे. म्हणजे बँकेमध्ये वगैरे किंवा ऍज आय टोल्ड यू, आपण असं हॉटेलमध्ये वगैरे जातो, तिथे टोकन नंबर नुसार तुम्हाला तुमचे रिक्वेस्ट सर्व होते, राईट? ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे इफ यू यूज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज रॉन्ग. हियर यू नीड टू यूज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. हियर यू नीड टू यूज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. क्योंकि एज पर द रिक्वेस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मुझे काम करना है, तो मैं क्यू को यूज करूंगा. अगर मुझे डेटा इस पैटर्न में चाहिए तो आई विल गो फॉर अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, अगर अभी तुम लोग इमेजिन करो, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं. नाउ यू गाइज आर एट योर होम टाउन, जो भी कोई कहीं पे है, लाइक समबडी इज इन लाइक औरंगाबाद, कोई नागपुर में है, कोई कोल्हापुर में है, समबडी इज सांगली, सातारा. ओके, एवरीबडी इज इन अ डिफरेंट सिटीज. ठीक है. अगर सपोज तुम्हारे मोबाइल में कुछ इश्यू हो गया, तुमने मोबाइल तो परचेज किया था पुणे से, एंड सपोज योर मोबाइल इज अ सैमसंग मोबाइल, एंड तुम्हारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो अभी तुम मोबाइल को रिपेयर करने के लिए पुणे आओगे क्या? बताओ. तुम्हारा मोबाइल तुमने पुणे में परचेज किया था, बट नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर मोबाइल. ओके, टेल मी. यस. सी माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम लोगों ने ओके, अगर हमने यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मोबाइल अगर तुमने पुणे में परचेस किया, अगर तुम सपोज औरंगाबाद में हो या नागपुर में हो या कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सोलापुर, राइट? अगर इफ देयर इज एनी इशू, यू विल सर्च द नियर बाय सेंटर. यस और नो? सर्विस सेंटर जो तुम्हारे पास में होगा, घर के पास में होगा. यस और नो? टेल मी. सांगा तर बरं, हो की नाही? प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन. प्लीज अंडरस्टैंड द सिनारियो. ठीक है. अनदर सिनारियो कि तुम लोगों ने कॉल सेंटर को फोन किया. ठीक है, तुम लोगों ने कॉल सेंटर को फोन किया, तो कॉल सेंटर वालों ने क्या करेंगे? कॉल सेंटर वाले पूछेंगे कैन यू प्लीज टेल मी योर पिन कोड नंबर. ठीक है, तो तुमने तुम्हारा पिन कोड नंबर कॉल सेंटर में दे दिया. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तुमने तुम्हारा पिन कोड नंबर, तो उसने क्या किया, उस पर्सन ने, दैट पर्सन विल एंटर दैट पिन कोड इन अ सिस्टम. और उसको क्या होगा, तुम्हारे पिन कोड के एरिया के पास में जो जो सर्विस स्टेशन है उसको दिखाई देगा, और फिर वो बताएगा यू कैन गो टू दिस सर्विस स्टेशन हियर. तो उसके पास जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स. अगर गूगल मैप तुम यूज कर रहे हो, तो गूगल मैप के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, यहाँ पे यूज होता है ग्राफ. दिस डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ग्राफ. ठीक है, इसीलिए तुम्हारा जो गूगल मैप का जो रूट होता है, वो रूट इधर दिस रूट, और यू कैन गो बाय दिस रूट, और यू कैन गो बाय अनदर रूट. तो ऐसे अलग अलग रूट तुम्हें दिखते हैं. यहाँ पे है सपोज 2 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर.
तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ ग्राफ, बिकॉज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ ग्राफ। तो रियल टाइम का कोई भी एप्लीकेशन तुम देखो जिसके अंदर लाइक डेटा स्ट्रक्चर 100% प्रेजेंट होगा ही। विदाउट डेटा स्ट्रक्चर देर इज नो सॉफ्टवेयर डेव्हलप्ड, विदाउट डेटा स्ट्रक्चर देर इज नो सॉफ्टवेयर। तुम्ही कोणतं पण सॉफ्टवेअर बघा, झोमॅटोचं बघा, स्विगी बघा, ओलाचं कॅबचं ऍप्लिकेशन बघा, तुम्ही अमेझॉनचं ऍप्लिकेशन बघा, एव्हरीवेअर यू विल गेट द डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लिमेंटेड। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स आर, एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले आता है एरे, उसके बाद आएगा लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद आएगा और भी है इसमें, बट मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम देखेंगे डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। और जब तुम यहाँ पे किसको स्टैक को सीखोगे, तो स्टैक आई विल इंप्लीमेंट यूजिंग बोथ द थिंग्स, बाय यूजिंग द स्टैटिक, बाय यूजिंग द डायनामिक। क्यू में भी मैं ये दोनों यूज करने वाला हूँ, स्टैटिक डायनेमिक। ट्री में भी यूज होगा ये, ओके, ट्री में, हाँ ट्री में भी आएगा कहीं ना कहीं पे, ग्राफ में भी यूज होगा ये, स्टैटिक एंड डायनेमिक, रिमेंबर दिस। सो फॉर ऑल अदर डेटा स्ट्रक्चर्स यू शुड नो दिस टू कंसेप्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट को तो अभी टाइम है, बट फिलहाल आई एम अज्यूमिंग दैट कि तुम लोगों को एरे आता है, एम आई राइट? 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन ये तुम लोगों ने सी में कंप्लीट किया होगा, ऐसे मैं कंसीडर करता हूँ, एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो डायनेमिक मैंने लास्ट टाइम बोला था, ओके, डोंट वरी, दैट पार्ट अगेन आई विल रिपीट। सुनो, जिन लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर मिस किया है, कौन सा मैलॉक कैलॉक का, उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत हमें इसके साथ लगेगी, ठीक है, विद द लिंक लिस्ट एंड इसके साथ लगेगी, बट इसलिए मैं उसको भी फिलहाल होल्ड पे रखता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं मैलॉक कैलॉक वगैरह वगैरह, ठीक है। So now we are going to start with the help of array. There are two important things which is called as the linear search and a binary search. एक होता है linear search और एक होता है binary search. इसका सीक्वेंस याद रखो, जैसे मैंने तुम्हें बोला सबसे पहले व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें और भी कुछ चीजें बाकी है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कुछ काम दिया था करने के लिए, डू यू रिमेंबर? सूडो कोड वगैरह कुछ बोला था, आठवते का तुम्हाला? लास्ट टाइम आई टोल्ड यू सूडो कोड, टू राइट डाउन द सूडो कोड। यस, तो लास्ट टाइम मैंने सबसे पहले ये थियरी समझ लो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजिंग डेटा विद रिस्पेक्टिव मेमोरी, अरेंजिंग योर डेटा विद रिस्पेक्टिव मेमोरी। बट ये थियरी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एवरीबडी, डोंट बी कंफ्यूज। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले एक लाइन में अगर किसी ने पूछा कि डेटा स्ट्रक्चर को क्यों सीखना है, द रीजन इज दैट इफिशियंसी। व्हाट इज द रीजन? इफिशियंसी, अंडरस्टूड? okay, efficient output, to save the time, efficient output, ठीक है, ये होगा सबसे पहला आंसर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? इफिशियंसी। तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत, तो थ्योरी को हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी। इसमें एक कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, बिग ओ नोटेशन, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले मुझे क्या चाहिए, तुम लोगों को एल्गोरिदम, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज सब्जेक्ट का नाम होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो तुम्हें एल्गोरिदम लिखते आना चाहिए, एंड इसके साथ यू शुड प्रैक्टिस नाउ फॉर द ओके सूडो कोड, ठीक है।
तो सूडो कोड का तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो सूडो कोड मतलब क्या होता है? आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने ये बताया था कुछ सूडो कोड, ठीक है। यहाँ पे सपोज एडिशन एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक सूडो कोड देखते हैं हम लोग, रुको। देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? सूडो कोड। देखो अभी क्या करना है इसके अंदर, लुक एट दिस। तो बिगिन लिखा यहाँ पे, उसके साथ लिखा नंबर n1 n2 एंड सम। उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे इनपुट द नंबर 1। ओके, इनपुट दी नंबर 1। लुक एट दिस, इनपुट नंबर 1, इसका मतलब हमने स्कैन कर दिया। आउटपुट सॉरी, यहाँ पे आएगा इनपुट द नंबर 2। तो ये क्या करेगा? नंबर 2 को स्कैन कर लिया, दोनों का एडिशन कर दिया और आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो तुम्हें क्या एडवांटेज समझ में आ रहा है इस वाले कोड का? टेल मी, इसका क्या एडवांटेज लग रहा है तुम लोगों को? बता दो मुझे। We get to know what should be done before writing the source code, and we get a systematic method to start the program. Okay, very good, Sejal. Okay, easy to understand. Okay, that's right. Okay, Sumeda, no language restriction. Okay, this point is very important here. As Aditya said, no language restrictions. Okay, can be applied in any language like C, C++, Python and Java. तो सूडो कोड का पर्पस क्या होता है कि तुम्हारा लॉजिक टेस्ट किया जाता है बाय यूजिंग द सूडो कोड। अगर तुम कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट दैट ट्राई टू राइट द सूडो कोड। अगर फैक्टर का लिखना है, फैक्टोरियल का लिखना है, तो ट्राई टू राइट द सूडो कोड। तो जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था तो बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था। तो टुडे ट्राई टू राइट द सूडो कोड फॉर एटलीस्ट 5 प्रोग्राम्स। पहला वाला होगा एक्सेप्ट एनी नंबर एंड चेक द प्राइम नंबर और नॉट। सेकेंड वाला करोगे एक्सेप्ट एनी नंबर एंड प्रिंट अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तुम लिखोगे एक्सेप्ट एनी नंबर एंड प्रिंट द रिवर्स ऑफ दैट नंबर। जिनका सी प्रोग्रामिंग हुआ है उनके लिए ये है, ठीक है। फोर्थ वाला रहेगा यहाँ पे आएगा फिबोनाची सीरीज का, नहीं ये रिकर्शन से आएगा, इसको मत लिखो अभी, ये बात में लिखेंगे। तो 3 तो हो गए, प्राइम, फैक्टर एंड कौन सा बोला मैंने? रिवर्स का बोला, राइट? ओके, एक्सेप्ट द बेस एंड पावर एंड प्रिंट द आंसर। तो इसका भी सूडो कोड तुम्हें लिखना है। ओके, एंड फिफ्थ वन इज वेरी सिंपल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये 5 प्रोग्राम के लिए यू राइट डाउन द सूडो कोड। क्लियर? फॉर दिस 5 प्रोग्राम राइट डाउन द सूडो कोड। एवरीबody क्लियर? Zamir can I? For this 5 program you have to write the pseudo code, also algorithm and algorithm. Remember this, algorithm and pseudo code, for this 5 programs. ठीक है, तो algorithm कैसे लिखेंगे हम इसका? ऐसे ही करना है। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद आएगा यहाँ पे लिखोगे एंटर दी नंबर 1, देन उसके बाद आएगा एंटर दी नंबर 2। ओके, देन एडिशन ऑफ 2 numbers, print the answer and stop. So using this syntax you can write the algorithm, and with the help of this syntax you can write the pseudocode. ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें इस 5 प्रोग्राम के लिए तुम्हें एल्गोरिथम और सूडोकोड लिखना है आज के आज, और इसको ग्रुप पे शेयर करना है। जो नया ग्रुप हम लोगों ने बनाया उसके ऊपर शेयर दिस थिंग। ओके, ठीक है। हाँ, दिस इज द फर्स्ट टास्क। देन सेकेंड थिंग इज कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, ये हम लोग बाद में देखेंगे। बिग ओ नोटेशन, इसको हम लोग देखेंगे इस थ्योरी को, डोंट वरी। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ये थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। ओके, सो आई विल डिस्कस दिस थ्योरी विथ यू। डायनेमिक मेमोरी allocation I need whenever I will. Okay, so as I said कि
ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आई नीड व्हेनेवर आई विल गो फॉर द which topic here linked list. So we'll continue with which topic now from tomorrow onwards. We'll continue with the searching and sorting. ठीक है, तो जिन लोगों का पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुआ है डोंट वरी, ओके, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी बोल रहा हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी, तो जस्ट इग्नोर दिस theory भी आई डोंट वांट राइट नाउ, जस्ट इग्नोर दिस, जस्ट फोकस ऑन द दिस प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. डेटा स्ट्रक्चर को मैं कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, इम्पॉर्टंट अँड डिफिकल्ट ऑल्सो. ठीक आहे, इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. थोडंसं इंट्रोडक्शन मिळालं का डेटा स्ट्रक्चरचं? सो जस्ट वन इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर इज इफिशियंसी. ठीक है, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक फर्स्ट. ये वाला टॉपिक हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कल से. ठीक है, तो सूडो कोड क्यों लिखा जाता है मैडम? द रीजन ऑफ द सूडो कोड इज, अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सूडो कोड लिखते हैं. ओके, और उसका सिंपल इंग्लिश में हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू एग्जीक्यूट. ओके, सो जो जो उसके स्टेप्स है उसको समझने के लिए हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, और उसका लॉजिकल पार्ट मतलब कोडिंग का पार्ट समझने के लिए हम लोग उसका सूडो कोड लिखते हैं. ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट में जाओ तो बोला जाता है कि राइट डाउन द सूडो कोड. तो इसका प्रैक्टिस करो, बेसिक बेसिक लिखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन इजीली राइट दिस. ओके, जस्ट ट्राई टू राइट द एल्गोरिथम एंड सूडो कोड फॉर द गिवन क्वेश्चंस हियर. ये 5 क्वेश्चंस के लिए सूडो कोड लिखो और एल्गोरिथम लिखो. ठीक है, ठीक है. So from tomorrow I will start this topic which is called as searching and then sorting. इसके बाद में फिर से तुम्हें ये थ्योरी बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि बिगो नोटेशन को क्यों यूज किया जाता है. ओके, देन व्हाट इज द बिगो नोटेशन, हाउ टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनी एल्गोरिथम. तो ये सब लोग हम इसके बाद देखेंगे आफ्टर द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, आफ्टर द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग. So tomorrow I will start with the searching concept. Okay, tomorrow same time I will start with the searching concept. ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं लेक्चर को. विल कंटिन्यू टुमारो.